ریجا گاؤں جہاں ہوا میں صدیوں پرانے رہسیہ گھل گئے تھے، پہاڑوں کی گود میں گہری دھند اور سونی گلیوں کے بیچ بسا ہوا تھا۔ یہ کوئی سادھارن گاؤں نہیں تھا۔ یہاں کے ہر بچے کو اللہ کی طرف سے ایک خاص امانت ملتی تھی۔ کسی کی ہتھیلی پر ہریالی لہلہا اٹھتی تو کوئی اپنی آواز سے ہوا میں پانی کا رخ موڑ دیتا، کسی کو تاروں کی فسفساہٹ سنائی دیتی تو کوئی پتھروں کے دل میں چھپے راز پڑھ لیتا۔ یہ ہنر، یہ اللہ کی دین ریجا گاؤں کی پہچان تھے، ان کے ایمان اور صبر کا ثبوت۔ مگر اسی ریجا گاؤں میں ایک لڑکی تھی، زہرا، جس کی امانت باقیوں سے بہت الگ تھی، اتنی الگ کہ اسے خود بھی اس سے نفرت تھی۔ زہرا، جس کی آنکھیں اتنی گہری تھیں کہ جیسے ان میں قبرستان کا سناٹا اتر آیا ہو، وہ مرتی ہوئی چیزوں کی آخری سانس کو محسوس کر سکتی تھی۔ جب کوئی پتا اپنی شاخ سے ٹوٹ کر زمین پر گرتا، کوئی پھول دھوپ کی تپش سے مرجھاتا یا کوئی چھوٹا جانور دم توڑتا تو زہرا کو ایک عجیب سی ترنگ محسوس ہوتی۔ یہ ترنگ اس مرتی ہوئی چیز کے جیون سار کی آخری پکار ہوتی تھی، اور زہرا انجانے میں اسے اپنے بھیتر اوشوشت کر لیتی تھی۔ یہ شکتی، یہ امانت اسے اکثر درد دیتی تھی۔ ہر آخری سانس اپنے ساتھ ایک اداسی، ایک خاموش درد لے کر آتی تھی جو زہرا کے دل میں بیٹھ جاتا۔ گاؤں کے لوگ جو اپنے ہنر پر فخر کرتے تھے، زہرا کی شکتی کو ایک شیطانی سایہ، ایک منحوسیت یا موت کا شگن مانتے تھے۔ جب زہرا پاس آتی تو لوگ اپنی سانسیں روک لیتے، بچے اسے دیکھ کر چھپ جاتے۔ امام صاحب، جو گاؤں کے سب سے بزرگ اور اللہ کے نیک بندے مانے جاتے تھے، انہوں نے بھی زہرا کو جنزدہ، جن سے پربھاوت کہا تھا۔ اس لڑکی کے ساتھ کوئی بری طاقت ہے، انہوں نے ایک بار پنچایت میں کہا تھا، اس سے دور رہو، یہ گاؤں پر آفت لا سکتی ہے۔ زہرا کا بچپن تنہائی اور اداسی میں گزرا۔ اس کی ماں فاطمہ اور پتا حامد اسے بچانے کی ہر ممکن کوشش کرتے، پر وہ خود بھی اس رہسیہمئی شکتی سے بھیبھیت رہتے تھے۔ جب زہرا چھوٹی تھی تو ایک دن اس نے ایک سوکھتے ہوئے پودے کو چھوا تھا۔ پودے کی آخری سانس نے اسے اتنا درد دیا تھا کہ وہ کئی دنوں تک بخار میں رہی تھی۔ اسی دن سے گاؤں والوں کا ڈر اور گہرا ہو گیا۔ بچے اسے اناڑی، اشبھ کہہ کر پکارتے، اور کوئی اس کے ساتھ کھیلنے کو تیار نہ ہوتا۔ زہرا اکثر گاؤں کے باہری قبرستان میں جا کر بیٹھ جاتی، جہاں موت کا سناٹا ہوتا تھا، پر اسے وہاں شانتی محسوس ہوتی تھی۔ وہ اپنی شکتی سے نفرت کرتی تھی اور دعا کرتی تھی کہ کاش وہ بھی باقیوں کی طرح سامانیہ ہوتی، کاش اسے بھی ایمان کے نور سے بھری کوئی امانت ملتی، نہ کہ یہ اندھیرا۔ سال گزرتے گئے اور زہرا اب جوان ہو چکی تھی۔ اس کے چہرے پر اداسی کی ایک پتلی سی پرت ہمیشہ چھائی رہتی تھی۔ وہ نماز پڑھتی، قرآن کی تلاوت کرتی، پر اس کے دل میں ہمیشہ ایک خوف رہتا تھا کہ کہیں اس کی امانت اسے جہنم کی راہ پر نہ لے جائے۔ وہ قبرستان میں بیٹھ کر اپنی شکتی کو سمجھنے کی کوشش کرتی، کبھی کسی پرانی قبر پر پڑے سوکھے پھول کو چھوتی تو اس کے دل میں اس پھول کی آخری چاہت گونج اٹھتی۔ بارش کی ایک بوند، دھوپ کی ایک گرماہٹ، یہ سانسیں اس کے وجود کا حصہ بن جاتی تھیں، اور وہ اکثر کمزوری اور تھکاوٹ محسوس کرتی۔ ریجا گاؤں اپنی خاص امانتوں کے لیے مشہور تھا، لیکن اس کی خود کی غلط فہمیاں اور ڈر اسے اپنی ہی برکتوں سے دور کر رہے تھے۔ لوگ اپنے ہنر کا غلط استعمال کرنے لگے تھے۔ پتوں کی فسفساہٹ سننے والے چوری چھپے لوگوں کی باتیں سنتے، پانی کو موڑنے والے کھیتی کے بجائے دوسروں کے کھیتوں سے پانی چراتے، اور پتھروں کے راز جاننے والے امانت میں خیانت کرتے۔ امام صاحب اکثر خطبوں میں انصاف اور امانت داری کی بات کرتے، پر ان کی باتیں ہوا میں گھل جاتی تھیں۔ پھر ایک دن ریزا گاؤں پر ایک عجیب عذاب، وچتر وپدا، نازل ہوا۔ یہ کوئی سوکھا نہیں تھا جو کنووں کو سکھاتا یا زمین کو بنجر بناتا، یہ تو جیون شکتی کا سوکھا تھا، برکت، خوشحالی کا سوکھا۔ گاؤں میں ادرشیہ طریقے سے روحانی طاقت، آدھیاتمک شکتی کمزور پڑنے لگی۔ ہوا میں پتیوں کی پھسپھساہٹ اب درد بھری سسکیوں میں بدل گئی۔ پودوں کو سمجھنے والے اپنی سمرتھن کھو چکے تھے، اور پانی کو نینترت کرنے والے اپنے ہنر میں ناکام ہو رہے تھے۔ فصلیں کھیتوں میں ہی مرجھانے لگی، پشو بیمار پڑ کر دم توڑنے لگے، اور لوگوں کے چہرے پر روحانی کمزوری کی جھلک دکھنے لگی۔ ان کی آنکھیں بجھنے لگی تھیں، اور ان کے دل میں ایک خاموش اداسی چھا گئی تھی۔ گاؤں میں امام صاحب نے دعا کے لیے اذان دی۔ جمعہ کے دن خطبہ میں توبہ اور اللہ کی راہ پر چلنے پر زور دیا، نیکیاں کرنے کی ترغیب، پریرنا دی، لیکن کوئی فرق نہیں پڑا۔ گاؤں میں مایوسی چھا گئی تھی۔ لوگ نزلہ زکام سے لے کر بخار تک سے کمزور ہو رہے تھے۔ ان کی علاج کی طاقت گھٹتی جا رہی تھی۔ انہیں لگا کہ یہ اللہ کا کوئی بڑا عذاب ہے، شاید ان کے کسی گناہ کا نتیجہ۔ اس عذاب کے ساتھ
गांव में एक भयानक खामोशी छा गई थी। सुबह की चहचहाट गायब थी, बच्चों की किलकारियां सुनाई नहीं देती थी, पशुओं की खामोशी भी डरावनी थी। रेजा गांव, जो कभी अपनी खुशियों और अनोखे हुनर के लिए जाना जाता था, अब एक वीरान बस्ती में बदल रहा था। दूर दराज के शहरों से डॉक्टर आए, हकीम आए, पर कोई भी इस अजीब बीमारी को समझ नहीं पा रहा था। उनके इलाज बेअसर थे। डॉक्टर कहते, इनके जिस्म में कोई कमजोरी नहीं, खून में कोई खराबी नहीं, पर रूह थक गई है। गांव के लोग जो अपनी अमानतों पर नाज करते थे, अब बेबस थे। उनके हुनर उनके किसी काम नहीं आ रहे थे। पत्तों की फुसफुसाहट सुनने वाला अजीज अब सिर्फ सिसकियां सुनता। पानी को मोड़ने वाला करीम अब प्यास से तड़पता था। जहरा भी इस अजाब को महसूस कर रही थी। गांव की हर मरती हुई सांस उसे दर्द दे रही थी। हर कमजोर दिल की धड़कन, हर मुरझाते फूल की तरंग उसे बेचैन कर रही थी। वह दर्द अब सिर्फ उसके भीतर ही नहीं बल्कि पूरे गांव में फैल रहा था। उसकी कमजोरी बढ़ती जा रही थी क्योंकि वह अनजाने में इन हजारों सांसों को अवशोषित कर रही थी। उसके होंठ सूख चुके थे, आंखें धंसी हुई थीं और उसके चेहरे पर मायूसी की एक गहरी लकीर खिंच गई थी। एक रात जब पूरा गांव सन्नाटे में डूबा था और चांदनी कब्रिस्तान की कब्रों पर रोशनी बिखेर रही थी, जहरा को एक अजीब ख्वाब आया। उसे लगा जैसे वह कब्रिस्तान में बैठी है और उसके चारों ओर फरिश्तों जैसी रोशनी में रूहें घूम रही हैं। ये रूहें गांव के बुजुर्गों की थीं, जिन्हें अल्लाह ने खास अमानतें बख्शी थीं। उनकी आंखों में हमदर्दी और उम्मीद थी। फिर एक रूहानी आवाज़ जो खामोश होते हुए भी गहराई से गूंज रही थी और जिसकी आवाज़ में हज़ारों सदियों की दास्तान छिपी थी, उससे बोली, जहरा, तेरी अमानत जिसे तू शैतानी समझती है, वह अल्लाह का करिश्मा है। तू ही रेजा गांव को इस अजाब से बचा सकती है। हर मरती हुई सांस में एक अंतिम उम्मीद होती है और तू उसे हासिल कर सकती है। इस सूखे का इलाज तेरे भीतर है। इन सांसों को कबूल कर और नेकी की राह पर चल। यह अजाब तुम्हारे गुनाहों का नतीजा नहीं बल्कि तुम्हारे ईमान की आजमाइश है। अल्लाह तुम्हें आजमा रहा है कि क्या तुम अपनी अमानतों का सही इस्तेमाल कर सकते हो। रूहानी आवाज़ जारी रही। गांव के लोगों ने अपनी अमानतों का गलत इस्तेमाल किया। उन्होंने लालच किया, ईर्ष्या की, दूसरों का हक मारा। इसीलिए उनकी ताकतें कमज़ोर पड़ गईं। तू पाक दिल है जहरा। तूने अपनी शक्ति से नफरत की पर गुनाह नहीं किया। तेरी अमानत सबसे कीमती है क्योंकि यह जीवन और मृत्यु के बीच का पुल है। ये फना को बका में बदलने की ताकत रखती है। खफाब टूट गया पर जहरा का दिल रोशनी से भर गया। उसे अपनी शक्ति का असल मकसद समझ में आया। उसकी अमानत मौत का शगुन नहीं बल्कि जीवन का चश्मा थी। वह मरती हुई चीज़ों की आखिरी सांस को अवशोषित करके उनमें जीवन की उम्मीद जगा सकती थी। लेकिन यह आसान नहीं था। उसे गम, तकलीफ और मायूसी से भरी सांसों को अपने भीतर समेटना होगा, जो उसे शारीरिक और मानसिक रूप से कमज़ोर कर सकती थीं। यह इलाज दर्दनाक होगा क्योंकि उसे उस समस्त निराशा को महसूस करना होगा जो मौत के करीब हर रूह से निकल रही थी। अगले दिन सुबह जहरा नमाज के बाद इमाम साहब और गांव के मुखिया के पास गई। गांव के कुछ बुजुर्ग, जिनमें हाजी उस्मान जो पत्थरों के राज जानते थे और बीबी ज़ैनब जो पौधों की आवाज़ सुनती थीं, भी शामिल थे, वहाँ मौजूद थे। जहरा ने अपने ख्वाब की पूरी दास्तान सुनाई। वे रूहें खामोशी से जहरा की तरफ देख रही थीं। उसकी आवाज़ में एक अजीब सा यकीन था, एक ऐसी रूहानी ताकत थी जो पहले कभी नहीं थी। इमाम साहब ने उसे जिन नज़दा समझकर झिड़क दिया, जहरा, तू हमें और गुमराह न कर। ये सब शैतान का फरेब है। अल्लाह हमें गुनाहों से पाक कर रहा है। मुखिया भी डर गए थे। उन्होंने जहरा को दूर रहने को कहा। ये फरेब नहीं इमाम साहब, जहरा ने नम आवाज़ में कहा। यह अल्लाह का इशारा है। अहमद को ठीक करने से शुरू करते हैं। जहरा का छोटा भाई अहमद, जो बुखार से कमज़ोर पड़ चुका था, मौत के करीब था। फातिमा और हामिद मायूसी में दुआ कर रहे थे। जहरा ने हिम्मत जुटाई। उसने अहमद के पास जाकर अपना हाथ उसके माथे पर रखा। अहमद की कमज़ोर सांसें जहरा के भीतर समाने लगी। ये दर्द भयानक था, जैसे हज़ारों सुइयां उसके जिस्म में चुभ रही हों, पर जहरा ने सब्र किया। गांव वाले, मुखिया और इमाम साहब भी वहां मौजूद थे। वे हैरत से देख रहे थे। जहरा का चेहरा पीला पड़ने लगा था। उसके होंठ नीले पड़ गए थे, पर उसने अहमद का हाथ नहीं छोड़ा। धीरे धीरे अहमद के चेहरे पर रंग लौटने लगा। उसकी सांसें मजबूत होने लगी। कुछ ही पलों में अहमद ने अपनी आंखें खोलीं और मुस्कुराया। फातिमा और हामिद हैरान रह गए। उनकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। यह चमत्कार था जो गांव वालों ने अपनी आंखों से देखा था। अहमद ठीक हो चुका था। इमाम साहब और मुखिया ने जहरा की तरफ देखा। उनकी आंखों में डर नहीं
बल्कि हैरत और शर्मिंदगी थी। इमाम साहब ने गहराई से सांस ली। जहरा, अल्लाह ने तुझे करिश्माई ताकत दी है। उस दिन के बाद जहरा ने अपनी अमानत को गांव की खिदमत में लगाना शुरू किया। उसने सूखती फसलों के पास जाकर मरती हुई पत्तियों की आखिरी सांसें अवशोषित कीं और धीरे धीरे खेतों में जान लौटने लगी। उसने बीमार पशुओं के दर्द को अवशोषित किया और वे ठीक होने लगे। हर बार यह प्रक्रिया उसे कमज़ोर करती थी, पर गांव में जीवन लौटता देख उसे सुकून मिलता था। धीरे धीरे रेजा गांव की बरकत वापस लौट आई। कुएं पानी से भर गए, फसलें फिर से लहलहाने लगीं और लोग खुद को तंदुरुस्त और खुश महसूस करने लगे। गांव में मुस्कान लौट आई थी और इस खुशी का कारण थी जहरा। इमाम साहब और मुखिया ने जहरा से माफ़ी मांगी। इमाम साहब ने जुमा की नमाज में कहा, हमने अल्लाह की अमानत को शैतानी समझा। जहरा जिन्नज़दा नहीं, वह अल्लाह का करिश्मा है। उसकी ताकत मौत को ज़िंदगी में बदलने की है। गांव के लोग शर्मिंदा थे, पर अब वे जहरा को प्यार और इज्जत से देखने लगे थे। बच्चे उसके पास आते, प्यार से उसके हाथों को छूते और उसे खुदा की नेक बंदी कहते। लेकिन जहरा की राह आसान नहीं थी। अल्लाह की नेमत जब जाहिर होती है तो उसके दुश्मन भी पैदा होते हैं। गांव से बाहर एक दूर शहर में एक जालसाज ताबीज़ बनाने वाला रहता था, जिसका नाम था मुनीर शाह। वह काला जादू और जिन्न को वश में करने का दावा करता था। रेजा गांव में चमत्कार की खबर उस तक पहुंची तो उसकी आंखों में लालच आ गया। उसने सोचा, यह जहरा की ताकत मेरे काम आ सकती है। मैं उसे वश में करूंगा और दुनिया का सबसे शक्तिशाली जादूगर बन जाऊंगा। मुनीर शाह अपने कुछ शागिर्दों के साथ रेजा गांव की तरफ रवाना हुआ। उसकी नीयत खराब थी, उसके कदम गुनाह की राह पर थे। रेजा गांव पहुंचकर उसने इमाम साहब और मुखिया से मुलाकात की। मैं ईमानदार आलिम दीन हूँ, उसने झूठ कहा। मैंने सुना है कि गांव पर अल्लाह का फजल नाजिल हुआ है। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करने आया हूँ। मुनीर शाह ने अल्लाह के नाम पर कसमें खाईं और नमाजें पढ़ीं ताकि गांव वालों को यकीन हो जाए कि वह नेक है। जहरा को मुनीर शाह की करीब आते ही एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। उसे लगा जैसे हवा में सड़ी हुई पत्तियां और मरे हुए जानवर की अजीब सी बदबू घुल गई हो, जो उसके भीतर तक दर्द पैदा कर रही थी। ये बदबू मुनीर शाह के गलत इरादों और शैतानी सोच का सबूत थी। उसने फातिमा और हामिद को आगाह किया, यह आदमी नेक नहीं है अम्मा, इससे दूर रहना। पर फातिमा और हामिद मुनीर शाह की नमाजों और मीठी बातों से मुतासिर प्रभावित हो चुके थे। मुनीर शाह ने जहरा की ताकत को करीब से देखा। उसने देखा कि कैसे जहरा एक सूखते हुए पौधे को हाथ लगाती है और उसमें जान लौट आती है। उसकी लालच और बढ़ गया। एक दिन उसने जहरा को अकेले में रोक कर कहा, ए लड़की, मैं जानता हूँ कि तेरे भीतर एक अजीब ताकत है। यह अल्लाह का नूर नहीं बल्कि शैतानी ताकत है। मैंने इसे पहचान लिया है। अगर तू मेरी बात माने तो मैं तुझे इस अजाब से निजात दिला सकता हूँ। जहरा को गुस्सा आया। शैतान तू है मुनीर शाह, उसने सख्त लहजे में कहा। मेरी ताकत अल्लाह की अमानत है, गुनाह नहीं। मुनीर शाह हंसा। तू नादान है लड़की, तू जाल में फंस चुकी है। मैं तेरे नाम पर दौलत कमाऊंगा और तुझे गुलाम बनाऊंगा। उसने जहरा पर काला जादू करने की कोशिश की। हवा में अजीब सी तरंगें उठीं। जहरा को चक्कर आने लगे, जैसे हजारों मरती हुई सांसें एक साथ उस पर हमला कर रही हों। पर जहरा ने आंखें बंद कीं और अल्लाह का नाम लिया। उसकी अमानत ने उसे बचा लिया। मुनीर शाह का जादू उस पर बेअसर रहा। मुनीर शाह हैरान रह गया। उसने ऐसा कभी नहीं देखा था। उसे एहसास हुआ कि जहरा की ताकत उसके अंदाजे से कहीं ज्यादा थी। मुनीर शाह ने गांव में झूठ फैलाना शुरू किया। यह लड़की अल्लाह का फजल नहीं, ये शैतानी ताकत है। इसने जिन्न को वश में किया है। लोगों को फिर से शक होने लगा। इमाम साहब भी परेशान थे, क्योंकि मुनीर शाह नमाज भी पढ़ता था और दीन की बातें भी करता था। रेजा गांव में फिर से खौफ और मायूसी छाने लगी। मुनीर शाह ने रात के अंधेरे में गांव के पशुओं को बीमार करना शुरू किया, फसलों को नुकसान पहुंचाया और छोटे बच्चों को बुखार में धकेल दिया ताकि जहरा को ज्यादा से ज्यादा मरती हुई सांसों को अवशोषित करना पड़े और वह कमजोर पड़ जाए। उसकी नीयत जहरा को कमजोर करके उस पर काबू पाने की थी। जहरा को दर्द हो रहा था। हजारों सांसों का बोझ उसे अंदर से खोखला कर रहा था। उसके जिस्म में कमजोरी बढ़ती जा रही थी। फातिमा और हामिद चिंतित थे। अहमद तो ठीक था, पर अब जहरा की जान को खतरा था। एक दिन जहरा कब्रिस्तान में बैठी दुआ कर रही थी जब उसकी आंखें नींद से झपक गईं। उसे फिर से ख्वाब आया। वही रूहानी आवाज सुनाई दी, जहरा, अल्लाह तुझे आजमा रहा है। नेक नियत से लड़, ईमान की राह पर चल।
शैतान कमज़ोर होता है, अल्लाह की ताकत बेपनाह है। सच्चाई की रोशनी हमेशा अंधेरे को दूर करती है। ख्वाब से जागने के बाद जहरा ने एक अहम फैसला लिया। उसे मुनीर शाह से लड़ना होगा, न सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए बल्कि रेजा गांव को शैतानी असर से आज़ाद कराने के लिए। उसने इमाम साहब और मुखिया को मुनीर शाह की असली हकीकत बताने की कोशिश की, पर मुनीर शाह ने खुद को नेक साबित करने के लिए नमाजें पढ़ी और ज़बरदस्त जिक्र किया। गांव वाले फिर से दुविधा में पड़ गए। जहरा ने हिम्मत नहीं हारी। उसने कब्रिस्तान के सबसे पुराने और पवित्र पीर की कब्र पर दुआ की। ये कब्र गांव के सबसे नेक और अल्लाह वाले बुजुर्ग की थी, जिनके नाम पर गांव में बरकत आती थी। दुआ करते ही जहरा को अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई। उसे लगा जैसे पीर की रूह उसे सही राह दिखा रही है। एक दिन जुमा की नमाज के बाद मुनीर शाह ने इमाम साहब को चुनौती दी, अगर जहरा में अल्लाह की ताकत है तो वह आज मेरी ताकत का मुकाबला करे। हम दोनों अपनी ताकत का मुजाहरा करेंगे और गांव वाले फैसला करेंगे कि कौन सही है और कौन गलत। इमाम साहब और मुखिया चिंतित थे, पर मुनीर शाह की जिद के आगे वे लाचार थे। जहरा ने चुनौती कबूल कर ली। गांव के मैदान में हजारों की भीड़ जमा हुई। मुनीर शाह ने सबसे पहले अपना जादू दिखाया। उसने हवा में अजीब मंत्र पढ़े और चारों तरफ काले साए दिखाई देने लगे। आसमान काला पड़ गया, हवा में अजीब बदबू फैल गई और लोगों के चेहरे पर डर छा गया। मुनीर शाह ने अपनी ताकत से सूखे पेड़ों को और ज्यादा सूखा कर दिया और कमजोर लोगों को और बुखार दे दिया। उसकी शक्ति तबाह करने वाली थी। अब जहरा की बारी थी। गांव के लोग डर और उम्मीद के बीच थे। जहरा मैदान के बीच में आई। उसने आंखें बंद की और अल्लाह का नाम लिया। उसने अपने हाथ आसमान की तरफ उठाए। धीरे धीरे उसके भीतर से एक रोशनी निकलने लगी जो सफ़ेद और नूरानी थी। यह रोशनी अल्लाह के फजल और उसकी पाक अमानत की चमक थी। जहरा ने करीब के सबसे सूखे पेड़ को छुआ। उसके भीतर से उसकी सारी दुख और दर्द भरी सांसें अवशोषित होने लगीं। यह दर्द भयानक था। जहरा के जिस्म में झटके लगने लगे। उसके होंठ नीले पड़ गए, पर उसने सब्र किया। देखते ही देखते सूखे पेड़ में जान लौटने लगी। सूखी टहनियों पर हरी पत्तियां निकलने लगीं और पेड़ फूलों से भर गया। मुनीर शाह हैरान रह गया। उसकी आंखें फटी रह गईं। फिर जहरा ने मैदान में एक कमज़ोर बच्चे को छुआ जो बुखार से तड़प रहा था। बच्चे की कमज़ोर सांसें जहरा के भीतर समाने लगीं। जहरा का चेहरा पीला पड़ा, पर बच्चे के चेहरे पर रंग लौटने लगा और कुछ ही पलों में वह हंसने लगा। गांव के लोगों की आंखों में आंसू आ गए। यह चमत्कार था, जीवन को वापस लाने का चमत्कार। मुनीर शाह घबरा गया। उसने जहरा पर अपना सबसे ज्यादा ताकतवर जादू किया। हवा में अजीब आवाजें गूंजने लगीं। जहरा को घेरे हुए काले साए नजर आने लगे। गांव वाले डर गए। इमाम साहब ने अल्लाह का नाम लिया। जहरा ने आंखें बंद की। उसे अजीब सी गर्माहट महसूस हुई, जैसे कब्रिस्तान के पीर की रूह उसे ताकत दे रही हो। उसके भीतर से और भी ज्यादा तेज रोशनी निकली, जिसने काले सायों को भस्म कर दिया। मुनीर शाह पीछे हट गया। उसकी ताकत जहरा के नूर के आगे कमजोर पड़ गई थी। मुनीर शाह कमजोर पड़ चुका था। उसका जादू बेअसर हो गया था। जहरा ने अपने हाथ उसके सामने की। मुनीर शाह, उसने आवाज में मजबूती से कहा, अल्लाह गुनाहों को बख्श देता है पर शैतानी इरादों को नहीं। तूने अल्लाह की अमानत का अपमान किया है। मुनीर शाह डर के मारे कांपने लगा। उसका जिस्म सुन्न हो चुका था। जहरा ने उसकी आंखों में देखा और मुनीर शाह के भीतर से नकारात्मकता और शैतानी सांसें बाहर निकलने लगी जो हवा में घुल गईं। वह कमज़ोर होकर गिर पड़ा। उसकी सारी जादूगरी ख़त्म हो चुकी थी। उसकी आंखें खाली थीं और उसकी रूह अंधेरे में डूब चुकी थी। गांव के लोगों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। इमाम साहब ने जहरा को सीने से लगाया। अल्लाह सबसे बड़ा है जहरा, तेरी अमानत ने हमें बचा लिया। मुखिया ने जहरा के कदमों में गिरकर माफ़ी मांगी। मुनीर शाह को गांव से बाहर निकाल दिया गया। उस दिन के बाद रेजा गांव में एक नया अध्याय शुरू हुआ। जहरा सिर्फ एक लड़की नहीं थी, वह गांव की रूहानी मरियम, आध्यात्मिक माँ बन चुकी थी। उसने अपनी अमानत का इस्तेमाल सही रास्ते पर किया। वह कभी कभार कमज़ोर पड़ती, पर गांव का प्यार, इज्जत और अल्लाह पर यकीन उसे ताकत देता। रेजा गांव अब न सिर्फ अपनी खास अमानतों के लिए जाना जाता था, बल्कि अल्लाह के करिश्मे के लिए भी। जहरा ने गांव में एक मदरसा खोला, जहां वह बच्चों को कुरान के साथ साथ अपनी अमानतों का सही इस्तेमाल करना सिखाती थी। उसने सिखाया कि हर अमानत अल्लाह की नेमत है और उसे लालच या नफरत के लिए नहीं, बल्कि नेक नियत और खिदमत के लिए इस्तेमाल करना चाहिए।
अहमद बड़ा हो गया था और वह अपनी बहन का सबसे बड़ा सहारा था। फातिमा और हामिद अपनी बेटी पर नाज करते थे। जहरा की अमानत अब गांव की खुशहाली का सबूत थी। उसने हर मरती हुई सांस में जीवन की उम्मीद जगाई थी। गांव के लोग अब एक दूसरे की अमानत का सम्मान करते थे और उन्हें यकीन था कि अल्लाह का फजल हमेशा उन पर बरकरार रहेगा जब तक वे नेक नियत से अपने हुनर का इस्तेमाल करेंगे। आज भी रेजा गांव की हवा में धुंध और रहस्य घुलते हैं, पर अब वे डर का नहीं बल्कि करिश्मे और उम्मीद का पैगाम देते हैं। जहरा, जिसकी आंखें कभी उदासी और तन्हाई से भरी थीं, अब मुस्कान और शांति से चमकती हैं। वह अपनी अमानत को अब श्राप नहीं बल्कि अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत मानती है। हर रात जब चांदनी रेजा गांव पर फैलती है तो बच्चे जहरा की कहानी सुनते हैं। जहरा की अमानत की कहानी, उन सांसों की कहानी जो मौत के बाद भी जिंदा थी और जिसने एक पूरे गांव को मौत के मुंह से निकालकर जीवन और खुशहाली दी। और उन्हें यकीन है कि अल्लाह का करिश्मा हर इंसान के भीतर होता है, बस उसे पहचानने और सही राह पर इस्तेमाल करने की ज़रूरत होती है। ये कहानी सिर्फ जहरा की नहीं बल्कि रेजा गांव की हर रूह की कहानी है। उन अमानतों की कहानी है जो अल्लाह ने इंसान को बख्शी हैं और सही नीयत से इस्तेमाल करने पर कैसे वे चमत्कार कर सकती हैं। ये कहानी इस बात का सबूत है कि ईमान और सब्र के साथ मुश्किलों का सामना किया जाए तो अल्लाह ज़रूर राह दिखाता है और अंधेरों को नूर में बदल देता है। मुनीर शाह के गिरने के बाद गांव में अमन और शांति लौट आई। जहरा की ताकत अब सिर्फ जीवन देने तक सीमित नहीं थी बल्कि नकारात्मकता को दूर करने की ताकत भी रखती थी। गांव के लोग अब उसकी हर बात को गौर से सुनते और कोई भी मुनीर शाह जैसे जालसाजों के झांसे में नहीं आता था। जहरा ने धीरे धीरे अपने गांव के पारंपरिक हुनर को और मजबूत किया। वह उन लोगों को प्रोत्साहित करती थी जिन्हें पानी को मोड़ने की ताकत थी कि वे सूखी जमीनों तक पानी पहुंचाए, न कि सिर्फ अपने खेतों तक। जिन्हें पत्तों की फुसफुसाहट सुनाई देती थी वे मौसम के बदलावों की भविष्यवाणी करते जिससे फसलों को बचाया जा सके। हाजी उस्मान, जो पत्थरों के राज जानते थे, जहरा के मार्गदर्शन में गांव के विकास के लिए छिपी हुई ज़मीनी खजानों को खोजने लगे जिनमें पानी के स्रोत और उपजाऊ मिट्टी शामिल थी। बीबी जैनब, जो पौधों की आवाज़ सुनती थी, अब हर सूखते पौधे की मदद करती थी और जहरा अपनी शक्ति से उन्हें जीवन वापस देती थी। रेजा गांव एक मिसाल बन गया था। दूर दूर से लोग यहाँ आते जहरा के करिश्मे को अपनी आंखों से देखने के लिए और गांव की खुशहाली को महसूस करने के लिए। जहरा ने कभी भी अपनी शक्ति का इस्तेमाल अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं किया। उसने हमेशा गांव और अल्लाह की खिदमत को अपनी जिंदगी का मकसद माना। एक दिन गांव के बुजुर्गों ने फैसला किया कि जहरा को रेजा गांव की सरपरस्त संरक्षक घोषित किया जाए। इमाम साहब ने उसे अपने हाथों से अल्लाह का एक पवित्र तावीज़ पहनाया जो ईमान और नूर का प्रतीक था। जहरा ने नम आंखों से यह स्वीकार किया। उसने गांव वालों को वादा किया कि जब तक उसके भीतर सांस है वह रेजा गांव की हिफाजत करती रहेगी। जहरा की माँ फातिमा और पिता हामिद बुढ़ापे में भी अपनी बेटी की अजमत पर नाज करते थे। उन्होंने देखा था कि कैसे उनकी छोटी सी बेटी, जिसे कभी शैतानी साया समझा जाता था, अल्लाह के फजल से गांव की उम्मीद बन गई। अहमद, जो जहरा की शक्ति से मौत के मुंह से वापस आया था, अब एक मजबूत और ईमानदार जवान बन चुका था और अपनी बहन के हर काम में उसका हाथ बंटाता था। रेजा गांव में अब हरियाली लहलहाती थी। कुएं पानी से भरपूर रहते थे और हवा में शांति और बरकत का एहसास होता था। बच्चे खुशी से खेलते और उनकी आवाज़ों में अल्लाह का शुक्र अदा होता था। गांव के लोग कभी नहीं भूले कि एक लड़की की अमानत ने कैसे उन्हें अजाब से निजात दिलाई थी। जहरा की कहानी रेजा गांव की लोक कथाओं का हिस्सा बन गई थी। हर रात माएँ अपने बच्चों को जहरा की कहानी सुनाती, कैसे अल्लाह अजीब से अजीब तरीकों से अपनी नेमतें बख्शता है और कैसे सही नीयत और ईमान से इस्तेमाल की गई शक्ति चमत्कार कर सकती है। जहरा कभी कभार फिर भी कब्रिस्तान जाती। वहाँ उसे शांति मिलती थी। वह महसूस करती थी कि हर खामोश कब्र में एक कहानी छिपी है, एक आखिरी सांस जो हवा में घुल गई है। पर अब यह दर्द उसे कमज़ोर नहीं करता था, बल्कि उसे समझ देता था कि जीवन और मृत्यु एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और हर अंत में एक नई शुरुआत छिपी होती है।
जहरा की अमानत ने उसे खुद को समझने में मदद की और गांव को एक नया जीवन दिया। वह सिर्फ एक लड़की नहीं थी, वह अल्लाह का एक जीता जागता करिश्मा थी। एक सबूत थी कि सबसे अजीब नेमत में भी सबसे बड़ी बरकत छिपी हो सकती है, अगर उसे ईमान और नेक नियत से इस्तेमाल किया जाए। यह कहानी रेजा गांव की हवा में घुल गई थी, सदियों तक गूंजती रही, एक याद दिलाती रही कि अल्लाह अपने बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता और सबसे बड़ी ताकत प्यार, कुर्बानी और नेक नियत में होती है। उसकी शक्ति सिर्फ जीवन देने की नहीं थी, बल्कि दिलों को जोड़ने की, डर को मिटाने की और भरोसा पैदा करने की भी थी। जहरा ने गांव में एक ऐसी व्यवस्था स्थापित की थी जहां कोई भी अपनी अमानत का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता था। एक पंचायत बनाई गई थी जिसमें इमाम साहब, मुखिया और जहरा शामिल थे, जो गांव के हुनरमंद लोगों को सही राह दिखाते थे। जहरा की अमानत ने रेजा गांव को दुनिया के लिए एक रोशनी बना दिया। लोग दूर दूर से यहाँ आते, सिर्फ चमत्कार देखने नहीं, बल्कि अल्लाह पर यकीन को ताज़ा करने और मानवीय रिश्तों की असलियत को समझने के लिए। गांव की हवा में अब खुशियों की महक थी और हर तरफ बरकत ही बरकत थी। जहरा बुढ़ापे तक गांव की खिदमत करती रही। उसकी आंखों में अब कोई उदासी नहीं थी, सिर्फ नूर और शांति थी। जब उसका आखिरी वक्त आया तो उसने अहमद और फातिमा को अपने पास बुलाया। मेरी अमानत तुम्हारे भीतर भी है, उसने धीरे से कहा। नेक नियत से इसका इस्तेमाल करना, अल्लाह तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। जहरा की मौत कोई गम का सबब नहीं थी, बल्कि एक अजमत का प्रतीक थी। उसकी रूह खामोशी से हवा में घुल गई, जैसे हजारों मरती हुई सांसें एक साथ जिंदा हो गई हों। गांव के लोगों ने उसे उसी पवित्र कब्रिस्तान में दफनाया जहां उसने बचपन में शांति पाई थी। उसकी कब्र पर हमेशा हरे भरे पौधे लहलहाते थे, फूल खिलते थे, जैसे जहरा की अमानत आज भी जिंदा हो। रेजा गांव ने जहरा को कभी नहीं भूला। उसकी कहानी सदियों तक चलती रही, एक मिसाल बनकर कि अल्लाह सबसे अजीब नेमतों में भी सबसे बड़ी बरकत रखता है और ईमान और प्यार ही सच्ची ताकत है। इस कहानी का हर शब्द तुम्हारे चैनल स्टोरी आंगन की गरिमा को बढ़ाएगा और दर्शकों के दिल में हमेशा के लिए घर कर जाएगा।